تک یا 11 تک وطر ہے، لیکن ان کے ہاں پھر یہ ہے کہ ایک رکعت پڑھنا خلاف اولا ہے یا مکرو ہے، اس سے پہلے دو شفع ہونے چاہیے۔ لیکن عجیب بات ہے، وہ اس دو شفے کو نفل میں شامل نہیں کرتے، وطر میں شامل نہیں کرتے۔ یعنی دو شفع مانتے ہیں کہ ایک شفع ہونا چاہیے، یعنی دو رکعت ہونے چاہیے، لیکن اسے وطر میں شامل نہیں کرتے۔ لیکن وہ کہتے ہیں اگر دو رکعت پہلے نہ پڑھے، صرف ایک رکعت پڑھے، تو پھر یہ خلاف اولا ہے یا مکرو ہے۔ تو عذر کی صورت میں وہ اس کی اجازت دیتے ہیں، صرف جیسے مسافر ہو یا مریض ہو، تو گویا کہ وہ بھی پھر گھوم پھر کے ادھر ہی آ جاتے تین پر، تو کم از کم وہ بھی پھر تین پر آ جاتے ہیں۔ لیکن بہرحال چونکہ احادیث کی تعبیرات کافی گنجلک سی ہے، پیچیدہ سی ہے، تو اس لیے احناف نے جو بالکل واضح احادیث ہے جو وطر کی قرات پر مشتمل ہے، اور جیسے حضرت عائشہ کی احادیث ہے جس میں سلاسن وطر کے لیے بڑا واضح استعمال ہوا ہے، تو احناف نے ان واضح احادیث کو لیا ہے، باقیوں کی تعویل کی ہے کہ وہ دراصل صلاۃ الوتر اور صلاۃ اللیل کو مکس کیا گیا ہے، یہ جس میں آئے کہ پانچ ایک سلام سے پڑھے۔ تو احناف، دیکھو تعویل کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب ایک حدیث شریعت کے کسی مسلم اصول سے ٹکراتی ہے نا، تو اس میں بھی پھر تعویل کی جاتی ہے۔ تو اب نماز کے بارے میں ایک مسلم اصول ہے کہ چاہے ایک آدمی 8 رکعت پڑھنا چاہتا ہو، 6 رکعت پڑھنا چاہتا ہو، چار پڑھنا چاہتا ہو، تو ہر شفع پر اسے بیٹھنا ہوگا۔ تو اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 5 پر آپ بیٹھے نہ ہو؟ بعض میں آتا ہے کہ 8 پر بھی آپ نہیں بیٹھتے تھے، تو گویا کہ وہ اس کے بالکل برخلاف ہے، اس لیے پھر اس کی اس طرح سے تعویل کر لی جاتی ہے۔ جی پڑھیں پھر۔ بسم اللہ السلام علیکم الرحمن سر۔ الرحیم۔ وعلیکم سر السلام۔ جی وہ پچھلی دفعہ ثاقب بھائی کہہ رہے تھے نا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف وہ جی جی 4 فرض اور ایک وتر پڑھتے تھے، تو آپ کہہ رہے تھے میں یہ حدیث دیکھوں گا تو آپ کی آواز نہیں آ وہ رہی۔ ان کو ملی، یا آپ کو یہ ان کو ملی جنہوں نے کہا تھا کہ وہ عبد الرحمن بن عوف کی حدیث ہے، ان کو ثاقب ملی بھائی یا آپ نہیں؟ اپنا کوشچن ریپیٹ کریں۔ یہ ساجی عبد الرحمن بن عوف کی نہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص بھئی آپ نے ڈھونڈی ہو کہ نہیں؟ وہ جی پھر جی آپ میں نے نے شیئر نہیں کی، اس کو شیئر کر دیں پھر۔ جی میں نے ڈھونڈی تھی، میں وہ کر دیتا ہوں شیئر، اسی کے حاشیے میں ہی ہے اپنی کتاب کے، سعد بن ابی وقاص کا ہے کہ انہوں نے ایک رکعت پڑھی تھی اس پہ، لیکن پھر عبداللہ بن مسعود نے ان کے ساتھ تھوڑی بحث مباحثہ کیا، تو اس طرح کی صحیح۔ ہے، وہ میں کر دیتا ہوں شیئر جی، ہاں اسی بک کے دیکھو، یہ اندر مباحثے سے بھی لگتا ہے نا کہ ایک عمومی ماحول نہیں تھا نا، جی یعنی اگر صحابہ اس میں مباحثہ کرتے ہیں، یا جیسے حضرت معاویہ کے بارے میں آتے ہیں کہ جب حضرت ابن عباس سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ بس وہ مجتہد ہے، وہ نبی علیہ السلام کے صحابی ہے، تو انہوں نے پڑھ لیا تو ٹھیک ہے، تو اس کا بھی مطلب ہے کہ معمول نہیں تھا۔ جی پڑھیں پھر۔ باب ما جاء في القنوت في الوتر، بسند متصل منا إلى الإمام الحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى بن الترمذي رحمه الله تعالى قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن بريدة بن أبي مريم عن أبي الحوراء قال قال الحسن بن علي رضي الله عنهما علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. وفي الباب عن علي قال أبو عيسى هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه، من حديث أبي حوراء السعدي اسمه ربيعة بن شيبان، ولا نعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت شيئا أحسن من هذا. واختلف أهل العلم في القنوت في الوتر، فرأى عبد الله بن مسعود القنوت في الوتر في السنة كلها، واختار القنوت قبل الركوع، وهو قول بعض أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري وابن مبارك وإسحاق وأهل الكوفة. وقد روي وقد روي عن علي بن أبي طالب أنه كان لا يقنط إلا في النصف الآخر من رمضان،
وكان يقنط بعد الركوع، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا، وبه يقول الشافعي وأحمد. शाबाश माशाल्लाह। तो अब वितर के सिलसिले में ये अगला मसला है बाबू माजा फिल कुनूत फिल वितर, यानी कि वितर में कुनूत पढ़ना। तो इसमें हदीस ये है, हज़रत अली हसन बिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है। वो फरमाते हैं कि अल्लमनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलिमातिन, कि नबी अलैहि सलाम ने मुझे कुछ कलिमात सिखाए हैं, अक़ूलुहुन्न फिल वितर, जिन्हें मैं वितर में कहा करूं, कि वितर में ये कलिमात कहा करें। अब वो कलिमात क्या हैं? फरमाया अल्लाहुम्मा हदिनी फी मन हदैत, हे अल्लाह मुझे हिदायत दे उन लोगों में जिनको आपने हिदायत दी है। वआफ़िनी फी मन आफ़ैत, और जिन लोगों को आपने आफियत दी उनमें मुझे भी गोया कि आफियत दी यानी शामिल फरमा। व तवल्लनी फ़ी मन तवल्लैत, तो तवल्ला का मतलब ये होता है दोस्ती ताल्लुक़, जिनके साथ आपका ताल्लुक़ है उनमें मुझे भी शामिल फरमा। व बारिक ली फ़ी मा आतैत व क़िनी शर्र मा क़ज़ैत, कि जो आप फैसला करें उसके शर से मुझे बचाएं। यानी जाहिर है अल्लाह ताला तो इंसानों के बारे में अच्छे फैसले भी करते, बुरे उनके अजाब वगैरह के फैसले भी होते, फरमाए उससे मुझे बचाएं। फ़इन्नका तक़ज़ी वला युक़ज़ा अलैक, कि आप फैसला करते हैं आपके खिलाफ फैसला नहीं होता। व इन्नहु ला यज़िल्लु मन वालैत, सुबहान अल्लाह। और मैं जो आपसे दोस्ती करे वो जलील नहीं होता। तबारक तरब बना व तालीत, बड़े अच्छे कलिमात हैं। और वफ़िल बाब यान अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अब उसके बाद इमाम तिरमिज़ी फरमाते क़ाल अबू ईसा हाज़ा हदीसुन हसन, ये हदीस हसन है। ला नारिफु इल्ला मिन हदीस अबिल हवरा अस्सादी, कि अबुल हवरा अस्सादी के तुरुक से हमें मालूम है और उनका नाम है रबिया बिन शैबान। और नबी अलैहि सलाम से हमें कुनूत में इससे बेहतर हदीस नहीं मिलती। अब वो आगे फरमाते वख्तलफ़ आलुल इल्म, आल इल्म का इख्तिलाफ हुआ फिल कुनूत फिल वितर, वितर के कुनूत के बारे में। फ़रा अब्दुल्ला इब्न मसूद, तो अब्दुल्ला बिन मसूद की राय ये है कि अल कुनूत फिल वित्र फ़िस्सनति कुल्लहा, कि वितर में कुनूत सारा साल पढ़ा जाएगा। वख्तारुल कुनूत क़ब्ल रुकू, और रुकू से पहले वो कुनूत के कायल हैं। वह कौल बाज़ अहल इल्म, और ये बाज़ अहल इल्म का कौल है। वबी यक़ूलु सुफ़यान अस-सौरी व इब्नुल मुबारक व इसहाक़ व अहलुल कूफ़ा। और हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि अन्नु कान ला यक़नुतु, वो कुनूत नहीं कहा करते थे मगर रमज़ान के आखिरी निसफ में, यानी रमज़ान के सिर्फ आखिरी 15 दिन कुनूत कहा करते थे, वितर में पढ़ा करते थे। और वो रुकू के बाद पढ़ते थे। वक़द ज़ाब बाज़ अहल इल्म इला हाज़ा व बी यक़ूलु शाफ़ी व अहमद। देखो कुनूत, एक तो वो कुनूत होता है जो किसी मुसीबत के वक्त पढ़ी जाती है। जब मुसलमानों पर कोई उमूमी मुसीबत आ जाए तो उसको कहते हैं कुनूत नाजिला। तो उसमें यह है कि फजर में भी, फजर में तो पढ़ी जाएगी, लेकिन बाज़ के यहाँ जाहरी नमाजों में सिर्फ पढ़ी जाएगी, बाज़ के यहाँ पांचों में भी पढ़ सकते हैं। एक तो वो कुनूत नाजिला है। एक है कुनूत वितर, वितर में जो दुआ कुनूत होती है, तो एक दुआ कुनूत ये है। एक जो हम पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका, वो भी दुआ कुनूत है। तो अब वितर के कुनूत के बारे में एक तो मसला ये है, जैसे उन्होंने मज़ाहिब बयान किए कि सारा साल पढ़ा जाएगा, तो मालिकिया और हनाफ के यहाँ सारा साल पढ़ा जाएगा। लेकिन शवाफे और हनाबिला का कौल ये कि आखिरी 15 दिन पढ़े जाएंगे। उनके और भी अकवाल है, एक कौल उनका यही मशहूर है। दूसरा वितर के हवाले से एक मसला ये है कि वितर के कुनूत के कि रुकू के बाद पढ़ेंगे या रुकू से पहले। हमारे यहाँ रुकू से पहले है और उनके यहाँ रुकू के बाद है। तो इसमें इन जैसे मसाइल में आसार सहाबा ज़्यादा है, तो इसलिए उन्होंने, उनके पास भी आसार सहाबा है। हमारे पास जो हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का असर है, तो हमने इसको लिया है। जी आगे। باب ما جاء في الرجل ينام عن الوتر أو ينساه، وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيء قال حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه أن أتى ابن يسار عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن الوتر أو نسيه فليصلي إذا ذكره وإذا استيقظ. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سمعت أبا داود السجزي
زيا يعني سليمان بن الأشعث يقول سألت أحمد بن حنبل عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فقال أخوه عبد الله لا بأس به، وسمعت محمدا يذكر عن علي بن عبد الله أنه زعف عبد الرحمن بن زيد بن الأسلم، وقال عبد الله بن زيد بن أسلم ثقة. وقد ذهب بعض أهل الكوفة إلى هذه الحديث وقالوا يؤتر الرجل إذا ذكر وإن كان بعدما طلعت الشمس، وبه يقول سفيان الثوري. शाबाश माशाल्लाह। ये बाबे बाबू माजा फिर रजुली, ये बाबे उस आदमी के बारे में जो वितर से सो जाए अवियंसा या भूल जाए, यानी वितर याद ही ना रहे, या उसने पढ़ना था लेकिन वो सो गया है। तो हज़रत अबू सईद खुदरी फरमाते हैं कि नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, मन्ना मानिल वितरे, जो वितर से सो जाए अवनस या से भूल जाए, फलीसली इज़ा करा, तो पढ़े जब उसे याद आए, वो इज़्ज़त कज़ा, और जब वो उठ जाए। दूसरी हदीस में यही है कि मन नाम आन वितरे फलीसली इज़ा असबह, कि उस वक्त पढ़े जब सुबह हो जाए। वादा असह मिनल हदीस अव्वल। अब आगे इमाम तिरमिजी फरमाते हैं, समय तो अबू दाऊद अस्सिज्जी, अबू दाऊद अस्सिज्जी, ये दरअसल इमाम अबू दाऊद की तरफ इशारा है, जो जिन्होंने अबू दाऊद शरीफ लिखी है। तो सिज्जी उनको इसलिए कहा जाता था कि वो सजिस्तान के रहने वाले थे, तो उसी की तरफ निस्बत करते हुए सिज्जी व कहा जाता है, सजिस्तानी भी कहा जाता है। कि वो इमाम अबू दाऊद फरमाते हैं कि मैंने इमाम अहमद बिन हम्बल से सुना, वो अब्दुर्रहमान बिन जैद बिन असलम से रिवायत करते थे, और वो कहते थे ये अब्दुल्ला के भाई है, ला बास भी, इसमें कोई हर्ज नहीं। तो ये दो भाई, अब्दुर्रहमान बिन जैद और अब्दुल्ला बिन जैद। उसकी कज़ा जो है ना, वो जब जब तक इंसान जिंदा है करेगा, जैसे बाकी नमाजों की कज़ा होगी, तो वितर की कज़ा अगले दिन करे, उससे अगले दिन करे, तो वितर उसके जिम्मे में रह गया है। लेकिन बाकी अइमा ये कहते हैं कि वितर की कज़ा उस वक्त तक है जब तक फजर की नमाज नहीं पढ़ी। जब एक मर्तबा फजर की नमाज पढ़ ली, तो अब वितर की कज़ा नहीं है, अब उसके कज़ा का वक़्त गुजर गया। तो वो इस हदीस को बुनियाद बनाते जिसमें आता है इज़ा असबह, कि जब सुबह हो जाए तो भी वितर पढ़ सकते हैं, लेकिन फजर की नमाज से पहले पहले। एक मरतबा फजर की नमाज पढ़ ली, अब उसकी कज़ा नहीं है। लेकिन हमारे नज़दीक इज़ा असबा का मतलब होता है जब फजर सादिक तुलू हो जाए, अब उसके कज़ा का वक़्त शुरू हो गया, क्योंकि अब वितर का वक़्त ख़त्म हो गया। अब उसकी कज़ा का वक़्त शुरू हो गया, तो जब उसको फिर मौका मिले वो उसको करे। तो इसलिए वो गोया कि उसकी कज़ा मानते हैं, लेकिन लिमिटेड टाइम में, एक महदूद वक़्त में, कि फजर की नमाज से पहले पहले तक भी उसको गुंजाइश है कि वो पढ़ ले। लेकिन एक मरतबा फजर की नमाज पढ़ ली, अब ख़त्म ही हो गया। लेकिन हमारे नज़दीक वितर का वक़्त है फजर सादिक के तुलू से पहले पहले, लिहाजा फजर सादिक के तुलू के बाद वितर का वक़्त ख़त्म हो गया, अब क़ज़ा होगी। तो अब क़ज़ा फिर जब वो पढ़े तो उसके ज़िम्मे उसकी क़ज़ा क्या होगी, वाजिब होगी। जी आगे। باب ما جاء في مبادرة الصبح بالوتر. وبه قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال حدثنا عبيد الله النافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بادر الصبح بالوتر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وبه قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتروا قبل أن تصبحوا. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج عن سليمان بن موسى عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل
الوتر فأوتروا قبل طلوع الفجر. قال أبو عيسى: وسليمان بن موسى قد تفرد به على هذا اللفظ. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا وتر بعد صلاة الصبح، وهو قول غير واحد من أهل العلم. وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق: لا يرون الوتر بعد صلاة الصبح. शाबाश माशाल्लाह। ये भी उसी बाब के सिलसिले से मुतालिक है। तो बाबू माजा फी मुबादरत सुबह बिलवित्री, कि सुबह से पहले पहले वितर पढ़ना। देखो ये असल में जो असल नुक्ता इख्तिलाफ है कि सुबह से क्या मुराद है। हदीस में सुबह का लफ्ज़ है, तो हम के नज़दीक, हमारे नज़दीक सुबह से मुराद है फजर की नमाज। फजर से पहले पढ़ लिया करो, क्योंकि फजर के बाद तो वो कज़ा हो जाएगी, फिर कज़ा पढ़नी पड़ेगी। इनके यहाँ सुबह से मुराद है फजर की नमाज, सुबह सादिक का वक़्त नहीं। तो लिहाजा फजर की नमाज से पहले पहले तक भी पढ़ सकते हैं, लेकिन फजर पढ़ लिया तो फिर उसका वक़्त ख़त्म हो गया, यानी फिर पढ़ ही नहीं सकते। तो हज़रत इब्न उमर फरमाते हैं कि नबी अलैहि काल बादिरु सुबह बिलवित्री, सुबह से पहले पहले वितर पढ़ लिया करो। काल अबू ईसा हादा हदीसुन हसनुन सहीहुन, कि ये हदीस हसन सही है। और दूसरी हदीस उन्होंने हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नकल की है कि वो फरमाते हैं कि अवतिरू कबल अन तुस्बिहु, सुबह से पहले पहले वितर पढ़ लिया करो। और तीसरी हदीस हज़रत इब्न उमर की है, वो नबी अलैहि सलाम से रिवायत करते हैं, इज़ा तला अल फजर, जब फजर तुलू हो जाए, फ़कत ज़ाब कुल्लु सलातिल लैल बिल वित्री, तो रात और वितर की नमाज का पूरा वक़्त ख़त्म हो गया, यानी आप न ताजुद पढ़ सकते हैं न वितर। फ़ाउतिरो कबल तुलुल फजर, तो तुलुए फजर से पहले पहले पढ़ लिया करो। क़ाल अबू ईसा व सुलैमान इब्न मूसा क़द तफ़र्रद बिहाज़ा लफ्ज़, उन्होंने ये लफ्ज़ जो है ना, ये तुलुए फजर वाले लफ्ज़ जो है ना, वो उन्होंने बोले हैं। और नबी अलैहि सलाम से ये कि ला वितर बाद सलात सुबह, कि सलात सुबह के बाद अब वितर नहीं है। यानी हमारे नज़दीक वितर ना होने का मतलब है कि उसकी अदा अब नहीं है, क़ज़ा तो होगी। और ये बहुत सारे अहले इल्म का कौल है, और यही शाफी अहमद इसाक का कौल है, ला यरौनल वितर बाद सलात सुबह, कि वो फजर की नमाज के बाद वितर पढ़ने के कायल नहीं है। लेकिन कायल तो हम भी नहीं है, लेकिन हम कज़ा की हद तक कायल है, अदा के हम भी कायल नहीं है, क्योंकि उसके अदा का वक़्त क्या हो गया, ख़त्म हो गया। जी पढ़ें। باب ما جاء لا وتران في ليلة. وبه قال حدثنا حناد قال حدثنا ملازم بن عمرو قال حدثني عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق بن علي عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا وتران في ليلة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. واختلف أهل العلم في الذي يؤتر من أول الليل ثم يقوم من آخره. فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم نقض الوتر، وقالوا: يضيف إليها ركعة ويصلي ما بدا له ثم يوتر في آخر صلاته، لأنه لا وتران في ليلة، وهو الذي ذهب إليه إسحاق. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: إذا أوتر من أول الليل ثم نام ثم قام من آخر الليل فإنه يصلي ما بدله ولا ينقض وتره ويدعو وتره على ما كان، وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس वितर وابن المبارك وأحمد، وهذا أصح لأنه قد روي من غير وجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى بعد الوتر. وبه قال शाबाश। حدثنا محمود بن तो البشار जी जी قال حدثنا पढ़ें। حماد بن مسعدة عن ميمون بن موسى المرائي عن الحسن عن أمه عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الفطر ركعتين. وقد روي أنه هذا عن أبي أمامة وعائشة وغير واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم. शाबाश। जी, तो ये बाब है, बाबू माजा ला वितरानी फी लैलतिन, कि एक रात में दो वितर नहीं है, यानी एक रात में दो बार वितर नहीं पढ़ सकते। तो तलक बिन अली, कैस बिन तलक बिन अली अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि मैंने नबी अलैहि सलाम को फरमाते हुए सुना, ला वितरानी फी लैलतिन, एक रात में दो वितर नहीं है। काल अबू ईसा हाजा हदीसुन हसनुन गरीबुन। देखो एक रात में दो वितर नहीं है, पहले इसको समझे। एक रात में दो वितर न होने का जमहूर क्या, तो मतलब ये है कि अगर एक आदमी ने
रात के शुरू में वितर पढ़ लिया है, फिर वो तहज्जुद के लिए उठ गया। अब बस उसके वितर हो गए, दोबारा वितर पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2 बार वितर नहीं पढ़े जा सकते। लेकिन इमाम इसहाक वगैरह इसको यूं देखते हैं। वो कहते हैं एक रात में 2 वितर का मतलब ये है कि अगर एक आदमी ने पहले वितर पढ़ लिया ना, फिर रात के आखिर में वो उठ गया, तो वो पिछले वितर को तोड़ दे। वितर को इस तरह से तोड़ दे कि उठकर एक रकत पढ़ ले। अब पहले तो 3 रकतें पढ़ी है ना, एक रकत अभी पढ़ लेगा तो वो 4 हो जाएंगी। तो गोया कि वो शफा बन जाएंगी, वितर टूट जाएंगे। अब नमाज पढ़ता रहे, रात की नमाज पढ़ता रहे, तो आखिर में फिर क्या करे? गोया कि वो आखिर में फिर जो है ना उसकी जो जो वितर है वो पढ़ ले। तो ला वितरानी फिलाई, लेकिन वो उसको इस अंदाज में देखते हैं। तो अब वो फरमाते वक्त इल्म, क्या इल्म का इख्तिलाफ है उस बारे में, जो यूं तिरु जो वितर पढ़ रहे रात के शुरू में, सुम्मा यकूम फिर उठ जाए आखिर में। फरा बाज इल्म, तो बाज नबी अली के सहाबा वगैरह, नबी अलैहि सलाम के सहाबा वगैरह, उनकी राय ये नक्जुल वितर, कि वितर को तोड़ दे। कैसे वितर तोड़ दे? वकाल, वो कहते युजीफ इलैहा, मिला ले उसके साथ एक और रकत, वो युसल्ली मा बदा लो, फिर नमाज पढ़ता रहे। सुम्मा यूतिरु फी आखिर सलाती, फिर नमाज के आखिर में वितर पढ़े। लिअन्नु ला वितरानी फी लैलतिन, क्योंकि एक रात में 2 वितर नहीं है। वो अल्लजी, और इसी की तरफ इमाम इसहाक गए। और बाज़ आलिम नबी अलैहि सलाम के सहाबा वगैरह फरमाते हैं कि जब रात के शुरू में वितर पढ़ लिए, सुम्मा नामा, फिर उठ गया, सुम्मा काम मिन आखिरी, फिर सो गए, फिर आखिर में उठ गए। अन्नु युसल्ली, कि वो नमाज पढ़े, माँ बदालो, जो उसको तौफीक मिले। वला यनकुज वितर, वितर को ना तोड़े। वह दो वितर वाला माकाना, और वितर छोड़ दे जिस तरह उस हालत पर थे, यानी वह कि वो पढ़ चुका है। वो वक़ौल सुफियान सौरी व मालिक बिन अनस व अहमद बिन मुबारक वादा असा, इसलिए कि नबी अलैहि सलातो सलाम से ये मरवी है कि आपने वितर के बाद भी नमाज पढ़ी है, यानी ये बात। क्योंकि असल में ना वितर के बारे में आता है कि आप अलैहि सलाम ने फरमाया अपनी आखिरी नमाज वितर बनाओ। तो इमाम इसाक यही कहते हैं कि आखिरी नमाज तो वितर नहीं बन रही जब आदमी रात को उठ जाए और वितर वितर पहले पढ़ चुका हो, तो इसलिए पहले उस वितर को तोड़ दे। लेकिन बाकी अइमा कहते हैं कि नहीं, आखिरी नमाज का मतलब है कि उसको आखिरी पैर में पढ़ो। ये मतलब नहीं है कि वितर के बाद नमाज ही नहीं आपने कभी पढ़ी हो। वितर के बाद आपके 2 रकत नफल आप बैठ कर पढ़ते थे, तो वो बड़े गोया के बड़े मजबूत और मुतादिद रिवायतों से साबित है। तो अब आगे वो एक रिवायत पेश कर रहे हैं हज़रत हसन बसरी, वो अन उम्मी, वो अपनी वालदा से, और वो आगे हज़रत उम्म सलमा से। देखो इमाम हसन बसरी की जो वालदा थी, गालिबन खैरा उनका नाम था, तो ये हज़रत उम्म सलमा की आज़ाद करदा बांदी थी। तो हज़रत हसन बसरी की हज़रत उम्म सलमा के यहाँ ही उनकी परवरिश वगैरह हुई है। तो इसलिए वो अपनी वालदा से, और वो हज़रत उम्म सलमा से, कि नबी अलैहि सलाम वितर नमाज पढ़ते थे वितर के बाद 2 रकतें। और मरवी है ये हज़रत अबू उमामा से, हज़रत आयशा से, और बहुत सारे सहाबा से भी। और रिवायतों में आता है कि आप बैठ कर पढ़ते थे। आप किस तरह से पढ़ते थे? बैठ कर पढ़ते थे। तो हमारे हजरात में से हज़रत गंगोई रहमुल्लाह वगैरह से मरवी है कि वो फरमाया करते थे कि फुकाहा तो कहते हैं ना कि और अहादीस में भी आता है कि बैठ कर नमाज पढ़ने से सवाब आधा होता है, जैसे पीछे हमने पढ़ा था। लेकिन वो फरमाते चूंकि नबी अलैहि सलाम की यह सुन्नत ये थी कि आप बैठ कर पढ़ते थे, तो मैं उस आधे सवाब को पसंद करूंगा इत्तिबा सुन्नत में, कि भाई सुन्नत की इत्तिबा हो जाए। चूंकि आप बैठ कर पढ़ते थे, तो इसलिए मैं भी जो है ना गोया कि बैठ कर पढ़ूंगा। तो गोया कि वो हजरात भी, हमारे हजरात भी गोया कि बैठ कर यानी उसको पढ़ा करते थे। और बाज़ उलमा फरमाते कि आप बिलकसद ऐसा करते थे, बैठकर बिलकसद करते थे, ताकि वो जो पीछे आप पूरी नमाज आपने पढ़ी और तहज्जुद पढ़े फिर वितर पढ़े, तो ये नमाज उन सब से अलग लगे। तो इसलिए आप बैठकर जो है ना वो नमाज पढ़ा करते थे। और ये दरअसल वो वही 2 रकतें हैं जिनका पीछे भी जिक्र आया, कि आप वो 5 के आखिर में बैठते थे। वो यही होता था कि आप 3 रकत पढ़ लेते थे, फिर उसके फौरन बाद 2 रकत शुरू कर लेते थे, फिर उसके बाद वह कि आप बैठते थे, यानी वक्फा करते थे। वितर और उन 2 रकतों में वक्फा नहीं करते थे। तो वो इन हदीसों की बुनियाद पर हम उसकी तशरीह यूँ करते। जी पढ़ें। उस्ताद जी, तीनों रकत के साथ जो 2 रकत पढ़ते हैं, ये वो बैठकर पढ़ते थे? नहीं नहीं, जो वितर पढ़ लिए, वितर के बाद 2 नफल, 2 नफल आप बैठकर पढ़ते थे। अच्छा अच्छा अच्छा। वितर के बाद 2 नफल बैठकर पढ़ते थे। मुझे तो पता नहीं, याद नहीं कब से शुरू किया है, लेकिन शुरू तो किया है बहुत, शायद ये हदीस पढ़ने के बाद से शुरू किया होगा, लेकिन पता नहीं।
تو وطر کے فوراً بعد 2 رکعت بیٹھ کر پڑھنے کا مستقل معمول ہے میرا، اب تو عادت ہی ہو گئی ہے۔ تو اس لیے ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی زیادہ پڑھا کرتے تھے، تو پڑھ لینے چاہیے۔ جی۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ جی۔ اس میں ایک بات میں نے پوچھنی تھی کہ اگر وطر آپ صبح تہجد کے بعد پڑھیں تو پھر اس کے بعد بھی 2 نفل اس وقت بھی بیٹھ کے پڑھیں یا ہاں بالکل یہی ہے، یا بالکل اس وقت بھی یہی ہے۔ جی۔ ٹھیک ہے۔ اور سر ایک اور چیز ہے کہ جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ احناف کے نزدیک فجر ادا نہیں ہوتے، تو اگر کبھی ایسا ہو کہ تہجد پڑھ رہا ہو اور اس کو دیر ہو جائے، یعنی اتنی دیر ہو کہ وہ ایک آخری رکعت اس کی رہ جائے، یا تشہد میں وہ ہو اور اذان ہو جائے، تو کیا پھر اس صورت میں بھی دوبارہ لوٹائے جائیں گے وطر؟ ہاں بالکل ایسے ہی، کیونکہ وقت داخل ہو گیا نا، تو جب وقت داخل ہو گیا اور اس کی نماز ابھی مکمل نہیں ہے تو اس کے وطر اب ہوئے نہیں، تو اس لیے پھر وہ وطر کی قضا کرے گا، ہمارے یہاں پھر اس کی اچھا قضا کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں جب نمازوں کا فدیہ دیا جاتا ہے نا، تو 6 نمازوں کا فدیہ دیا جاتا ہے، 5 کا نہیں۔ یعنی اگر کسی آدمی کی نماز قضا ہے، یا اس نے وصیت کی ہے، یا اس کے چاہنے والے چاہتے ہیں کہ ان کی طرف سے فدیہ دیا جائے میت کی طرف سے، تو 6 نمازوں کا فدیہ دیا جائے گا۔ اور جو اصحاب معذورین ہیں، یعنی جن کے اب نماز وہ پڑھ ہی نہیں سکتے، تو ان کا بھی اگر فدیہ دینا ہو تو وہ بھی 6 نمازوں کا ہوگا۔ جی۔ استاد جی اس میں یہ گزارش کرنا تھی کہ سمجھ میں جیسے آ گیا اب؟ جی سر جی اس میں یہ پوچھنا تھا کہ جیسے ہم جی جی پوچھیں۔ فجر کی نماز کے بارے میں آتا ہے کہ جس نے ایک رکعت پا لی، یعنی رکوع پا لیا اور سورج طلوع ہو گیا تو اس نے نماز کو پا لیا، اور اسی طرح عصر کی نماز کے بارے میں ہے کہ جس نے یعنی عصر کا ایک رکوع پا لیا اور سورج غروب ہو گیا تو اس نے وہ عصر کی نماز پا لی، تو کیا یہ درست بات ہے؟ یہ مسئلہ ہم پڑھ نہیں چکے ہیں، یہ باب میرے خیال میں پہلے آیا تھا یا نہیں آیا ہے؟ مجھے پتہ نہیں کیوں یاد پڑتا ہے کہ یہ باب آیا تھا، نہیں آیا ہے یہ باب؟ آیا استاد جی؟ آیا ہے نا؟ یہ مسئلہ ہے تو اس وقت ہم نے جی بات کی استاد تھی جی۔ نا، کہ ہمارے ہاں فجر میں ایسا نہیں، عصر میں ایسا ہے، اور اس پر وہ حدیثوں کی تعویل اور ان کی توجیہ بھی ہم نے کی تھی، مجھے تھوڑا بہت یاد پڑتا ہے۔ تو سر جی اگر عصر میں ہو سکتا ہے آصف تو پھر، صاحب۔ تو عصر میں اگر ہو سکتا ہے تو پھر یہ ہاں وطر کے بارے میں بھی تو کیا جا سکتا ہے قیاس اس کو؟ نہیں، وہ اثر میں اس وقت ہم نے وجہ پڑھی تھی کہ اثر کی وجہ دراصل یہ ہے کہ اس وقت وہ وقت ختم ہی نہیں ہوتا، وقت صرف مکروہ ہو جاتا ہے، سورج غروب ہونے سے وقت ختم نہیں ہوتا جب تک مکمل غروب نہ ہو۔ اور ظاہر ہے مکمل غروب وہ ہوتا نہیں، یعنی جب انسان پہلے شروع کرتا ہے تو آدھے غروب ہونے سے ظاہر ہے وقت ختم نہیں ہوتا، لیکن یہاں تو وقت نکل گیا نا۔ اور فجر میں بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ وہ سورج کا ایک کنارہ طلوع ہوتے ہی وقت مکمل نکل گیا، تو جب نکل گیا اب ظاہر ہے تو آدھی نماز ادا اور آدھی قضا نہیں ہوتی، یا تو پوری ادا ہوگی یا پوری قضا ہوگی، یہ مکس نہیں ہو سکتا۔ تو عصر میں بھی مکس نہیں ہے، وہ نماز ادا ہی ہے، تو لہٰذا جب ادا اور قضا مکس نہیں ہو سکتا تو پھر وہ نماز ختم ہو گئی، پھر وہ دوبارہ پڑھنا پڑے گا اس کو۔ جزاک اللہ اب خیر استاد سمجھ جی۔ میں آ گیا یا نہیں آیا؟ جی آ گیا استاد جی۔ چلو جی آگے۔ باب السلام ما علیکم جاء في سر۔ الوتر على الراحلة. سر جی وہ پوچھئے۔ حضرت حسن بصری کے بارے میں یہ آتا ہے نا کہ انہوں نے حضرت ام سلمہ کا دودھ پیا تھا۔ ایسا ہی ہے، ایسا ہی آتا ہے بالکل۔ ٹھیک۔ وبه قال حدثنا قتيبة قال زبردست۔ حدثنا مالك بن أنس عن أبي بكر بن عمر بن عبد الرحمن عن سيد يسار قال كنت مع ابن عمر في سفر فتخلفت عنه فقال أين كنت؟ فقلت أوترت فقال أليس لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة؟ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتر على راحلته. وفي الباب عن ابن عباس قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. وقد ذهب بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا
ورأوا أن يؤتر الرجل على راحلته، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم لا يؤتر الرجل على الراحلة، فإذا أراد أن يؤتر نزل فأوتر على الأرض، وهو قول بعض أهل كوفة. शाबाश माशाल्लाह। ये जो ना, ये जो हजरत हसन बसरी का आपने पूछा है, ये मुस्तकिल उन्होंने दूध नहीं पिलाया। ये भी गालिबन करामत है हजरत हसन बसरी की, हजरत उम्मे सलमा की। तो उस वक्त ज़ाहिर है हजरत उम्मे सलमा बहुत मुअम्मर खातून थी। तो ये दरअसल कहा जाता है कि उनकी माँ उनकी बांदी थी। तो ये कभी कभार वो ज़ाहिर है काम में मसरूफ़ होती या बाहर चली जाती, तो बच्चे थे रोते थे। तो फिर एक आध बार ऐसा हुआ कि उन्होंने उनको दूध भी पिलाया। ज़्यादातर वो उनको गोया के रोने से, जिस तरह नहीं बच्चे को खामोश कराते हैं उसको गोद में लेकर, तो ज़्यादातर ऐसा किया है। लेकिन एक आध बार उन्होंने दूध भी पिया है। कहते हैं उन्होंने उनके लिए दुआएं भी बहुत की हैं। और मुहद्दिसीन और उलमा कहते हैं कि हज़रत हसन बसरी की शख्सियत में बहुत ज़्यादा फसाद और बलागत थी, और अजीब व गरीब उनकी शख्सियत में तासीर थी। तो कहा जाता है कि उनकी जितनी तासीर है, ये हज़रत उम्मे सलमा के उस दूध पीने की वजह से है, या फिर उन्होंने जो उनके लिए दुआएं की उनको बचपन में उनको किया है, तो ज़्यादातर उनकी वो जो बरक़ात है वो उनमें मुंतकिल हुई। जी। अगला बाब है बाबू माजा फिल वित्री अल राहिला, के सवारी पर वितर पढ़ने का बयान। तो सईद बिन यसार कहते हैं कि कुन तो अमशी, मैं चला करता था माँ इब्न उमर फ़ी सफ़रिन, हज़रत इब्न उमर के साथ मैं जा रहा था सफ़र में। फ़तखल्लफ़ तो अनु, तो मैं उनसे पीछे रह गया। फ़काल, तो आपने फरमाया अइन कुंता, आप कहाँ थे। फ़कुल तो अवतर, तो मैंने कहा मैंने तो वितर पड़े, यानी सवारी से उतर उतर कर मैंने वितर पड़े। फ़काल अलैसा लका फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, फरमाया आपके लिए अल्लाह के रसूल में बेहतरीन नमूना नहीं है। राई तो रसूल वसल्लम यूतिरु अला राहिलती, मैंने नबी अलैहि सलाम को देखा आप अपनी सवारी पर वितर पड़ा करते थे। मतलब यह था कि आप क्यों रुक गए और नीचे उतर गए, आपको सवारी पर ही वितर पढ़ लेने चाहिए थे। वो फिलबाब अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल अबू ईसा हदीस इब्न उमर हदीसन हसनुन सहीहुन। और बाज़ आले इल्म नबी अलैहि सलाम के सहाबा वगैरह इसी की तरफ गए, और वो ये समझते हैं कि आदमी अपनी सवारी पर नमाज पढ़े, वही शाफी अहमद इसा का कौल है। और बाज़ आले इल्म कहते हैं ला युतिरु रजुल अला राहिला, कि आदमी सवारी पर वितर ना पड़े। फ़ैज़ा अरादा युतिरा, जब वितर पढ़ने का इरादा हो, नज़ला, तो उतर जाए। फ़ाउतरा अलल अर्ज़, ज़मीन पर वितर पड़े। वह कौल बाज़ अहल कूफ़ा, यही बाज़ आले कूफ़ा का कौल है। तो देखो हमारे यहाँ चूंकि वितर वाजिब है अहनाफ के यहाँ, तो इसलिए अहनाफ के यहाँ सवारी पर वितर बिला उज़र नहीं पढ़ सकते। लेकिन आयमा सलासा के यहाँ सवारी पर पढ़ सकते हैं। और उनकी दलील जो है ना वो ये उनकी हदीस है। लेकिन हम अहनाफ इसमें थोड़ा सा तावील करते हैं। हम कहते हैं यहाँ वितर से मुराद है सलातुल लैल। तो आप सलाम की शायद सलातुल लैल आपने सवारी पर पढ़े होंगे। तो चूंकि वितर और सलातुल लैल एक दूसरे पर बोले जाते हैं, तो वही मुराद होगी। वरना तो वितर वाजिब है, और वाजिब फ़र्ज की तरह अहकामात में अमलन अमलन सिवाय अकीदे के, तो बाकी वो बिल्कुल फ़र्ज की तरह है। तो लिहाजा जिस तरह फ़र्ज बगैर उज़र के सवारी पर नहीं पढ़ सकते, तो उसे भी नहीं पढ़ सकते। जी आगे। उस्ताद जी, सफ़र में ये जो सऊदी है ये मालिक, ये जिस तरह सुन्नतों की चोट है, तो ये वितर भी नहीं पढ़ते। तो सफ़र में उस्ताद जी इसकी, ये लोग नहीं पढ़ते। यहाँ बड़े शेख उनसे भी अगर सफ़र में पूछ लेना कि भाई वितर, तो ये कहते हैं ला। वो चूंकि उनके यहाँ वितर सुन्नत है ना, ख्वाह वो ताकीद वाली सुन्नत है, लेकिन वाजिब चूंकि उनके यहाँ वाजिब की कैटेगरी ही नहीं है ना। तो हमारे यहाँ चूंकि एक वाजिब की दर्जा है, एक वाजिब का एक स्टेटस, एक कैटेगरी है, दर्जाबंदी है। तो इसलिए हमारे यहाँ फिर सफ़र में हम वितर पढ़ते हैं, क्योंकि वो वाजिब है फ़र्ज की तरह। तो वो इसलिए नहीं पढ़ते कि सुन्नत है ना। तो जिस तरह बाकी सुन्नतों को नहीं पढ़ा जाता, तो इसको भी नहीं पढ़ा जाएगा। जी उस्ताद जी। जी बाबु मा पढ़े। जाअ फी सलाति दुहा, बाबु मा जाअ फी सलाति दुहा, वबिही क़ाल हद्दसना अबू कुरैब محمد بن محمد بن العلاء قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق قال حدثني موسى بن فلان بن أنس عن أمه ثمامة بن أنس بن مالك عن أنس بن مالك قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الضحى 12 ركعة بنى الله له قصرا من ذهب في الجنة. وفي الباب عن أم هاني وأبي هريرة ونعيم بن حمار وأبي ذر وعائشة وأبي أمامة وعتبة بن عبد سلمي وابن أبي أوفى وأبي سعيد وزيد بن أرقم وابن عباس. قال أبو عيسى حديث أنس حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وبه قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال ما أخبرني أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا أم هاني فإنها حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل فسبها ثمان ركعات ما رأيته صلى صلاة قط أخف منها غير أنه كان يتم الركوع والسجود. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وكان أحمد رأى أصح شيء في هذا الباب حديث أم هاني. واختلفوا في نعيم فقالوا بعضهم نعيم بن حمار وقال بعضهم ابن همار ويقال ابن هبار ويقال ابن حمام والصحيح ابن حمار. وأبو نعيم وحم فيه فقال ابن حمار وأخطأ فيه ثم ترك فقال نعيم عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني بذلك عبد بن حميد عن أبي نعيم. وبه قال حدثنا أبو جعفر سمناني يعني محمد بن أبي الحسين قال حدثنا أبو مسحر قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن أبي درداء وأبي ذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى أنه قال ابن آدم اركع لي 4 ركعات من أول النهار أكفف آخره. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. وروى وكيء وندر بن شميل وغير واحد من الأئمة هذا الحديث عن نهاس بن قهم ولا نعرف إلا من حديث. وبه قال حدثنا زيادة بن أيوب البغدادي قال حدثنا محمد بن ربيعة عن فضيل بن مرزوق عن أتية بن العوفي عن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا يدعوها ويدعوها حتى نقول لا يصليها. قال أبو عيسى هذا حديث غريب. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى البصري قال حدثنا يزيد بن زريع عن النهاس بن قهم عن شداد بن أبي عمار عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حافظ على شفعة الضحى غفر له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. قال أبو عيسى وقد روى وكيء والنذر بن شميل وغير واحد من الأئمة هذا الحديث أن النهاس بن قهم ولا نعرفه. शाबाश माशाल्लाह। तो यहीं तक है, पढ़ लिया ना जी। जी सर। तो बाब है बाब माजा फी सलात दुहा के चाश्त की नमाज के बारे में। तो ये जो है ना, इससे इसमें एक रावी आ रहा है, जरा इसको आप देखिए, मूसा बिन फुला बिन अनस। मूसा बिन फुला बिन अनस, इनके वालिद का नाम ही फुला था। बाज़ों ने गैलान नकल किया है, लेकिन ज़्यादातर ये है कि उनके वालिद का नाम ही फुला था, मूसा बिन फुला बिन अनस। तो इसलिए ऐसा ना समझना कि शायद वो भूल गए। तो अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाए, मन सल्ला दुहा, जिसने चाश्त की नमाज पढ़ी, सिंता याशर रकअतन, 12 रकअतें, बनल्लाहु लहू कसरन फिल जन्ना,
تو اللہ اس کے لیے محل بنا دیتے ہیں جنت میں من ذهب سونے کا۔ دیکھو اس کو آگے جانے سے پہلے یہ سمجھ لو کہ محدثین اور فقہا سب چاشت اور اشراق کی نماز کو ایک ہی سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اگر جلدی پڑھ لیں سورج طلوع ہونے کے فوراً بعد، یعنی 5-10 منٹ کے بعد پڑھ لیتے جیسے اشراق کا ٹائم ہوتا ہے، تو وہ اشراق ہے۔ لیکن اگر اس کو چھوڑ دیں اور جب سورج اچھی طرح سے روشن ہو جائے، یہ 9-10 بجے کے ٹائم پڑھ لیں، تو پھر وہی نماز پھر چاشت کہلائے گی۔ تو گئے کہ یہ ہے ایک نماز، نام دو دو ہیں وقت کے الگ الگ ہونے سے، لیکن صوفیہ ایسا نہیں کرتے۔ صوفیہ ان دو کو دو نمازیں سمجھتے ہیں، اشراق الگ اور چاشت کی نماز الگ ہے، لیکن بہرحال فقہا ان دونوں کو ایک نماز سمجھتے ہیں۔ تو اسی صلاۃ الضحیٰ میں وہ دراصل اشراق کی بھی ہے۔ وفي الباب عن أم هاني وأبي هريرة ونعيم بن حمار وأبي ذر وعائشة وأبي أمامة وعتبة بن عبد السلام وابن ابی اوفا وابی سعید وزید بن ارقم وابن عباس رضی اللہ عنہ۔ یہ اصل میں باقی صحابہ سے اشراق کی زیادہ حدیث ہے، اس لیے سب کو اکٹھے بیان کر دیا۔ قال ابو عیسیٰ حدیث انس حدیث غریب لا نعرف الا من هذا الوجه۔ تو اب آگے وہ کہتے ہیں کہ عبد الرحمن بن ابی لیلہ کہتے ہیں کہ ما اخبرنی احد، کہ مجھے کسی نے نہیں بتایا انہ را رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا یصلی الضحیٰ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام چاشت کی نماز پڑھتے تھے، الا ام ہانی مگر حضرت ام ہانی نے، فإنہا حدثت کیونکہ انہوں نے بتایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دخل بیت یا میرے گھر میں آئے یوم فتح مکہ کے دن، فاغتسل غسل فرمایا، فصبح 8 رکعات 8 رکعت نفل پڑھے، صبح کا مطلب ہوتا ہے نفل پڑھے۔ اب ام ہانی فرماتی ہے ما رأیت صلی صلاۃ قط اخف منها، ان 8 رکعتوں سے زیادہ مختصر میں نے کبھی آپ کو نماز پڑھتے نہیں دیکھا، بہت مختصر پڑھی۔ لیکن ساتھ کیا فرماتی ہے، غیر انه کان یتم الرکوع والسجود، مگر آپ رکوع سے زیادہ پورا کرتے تھے۔ یعنی مختصر کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ ارکان کا خیال ہی نہیں رکھتے تھے، مختصر پڑھتے تھے لیکن ارکان کے جو اس کے جو ایک مقدار ہے اس کا خیال بھی رکھتے تھے۔ قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن صحیح وکان احمد را اصح شیء، کہ امام احمد نے سمجھا ہے سب سے صحیح اس باب میں حضرت ام ہانی کی حدیث۔ باقی انہوں نے نعیم کے بارے میں تھوڑا سا ان کے والد کے بارے میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں نعیم بن خمار، بعض کہتے ہیں ابن حمار، اور بعض کہتے ہیں ابن حبار، اور کہا جاتا ہے ابن حمام، تو صحیح ابن حمار ہے۔ اور ابو نعیم اس میں وہم ہوا ہے تو انہوں نے ابن خمار کہہ دیا، یعنی اصل میں تو ابن حمام ہے، ابن حمار ہے، اور اس میں انہوں نے غلطی کی۔ ثم رکھا، پھر انہوں نے چھوڑ دیا، فرمایا نعیم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخبر، یعنی پھر باپ کا نام لیا ہی نہیں بعض موقع پر، فرمایا اخبرنی بذالک عبد بن حمید عن ابی نعیم۔ اس کے بعد اگلی حدیث ہے، یہ حضرت ابی درداء سے ہے، وہ حضرت ابو ذر سے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے، تو انو قال، دیکھو آپ کو پتہ ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا قول نقل کرے کہ قال اللہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ، تو وہ حدیث قدسی ہوتی ہے۔ تو لہٰذا یہ بھی حدیث قدسی ہے جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈائریکٹ اللہ کا قول نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ابن آدم ہے، ابن آدم ارکع علی 4 رکعات من اول النہار، فرمائے دن کے شروع میں 4 رکعت میرے لیے پڑھو، اکفی کا آخر ہو، تو میں آخر تک آپ کے لیے کافی ہو جاؤں گا۔ آپ کے لیے کافی ہو جاؤں گا مطلب ہے پورے دن میں جو آپ کو مسائل پیش آتے رہتے ہیں، جو کام پیش آتے رہتے ہیں، پھر میں وہ آپ کے کام جو ہے نا وہ گویا کہ بناؤں گا، کروں گا۔ قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث غریب وروا وکیع والنضر بن شمیل وغیر واحد من الائمہ ھذا الحدیث عن نحاس بن قہم عن شداد ابی عمار عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ من حافظ علی شفعۃ الضحیٰ، کہ جس نے چاشت کے 2 رکعت پر پابندی کی، غفر له ذنوبہ، تو اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہو۔ وروا وکیع والنضر بن شمیل وغیر واحد من الائمہ ھذا الحدیث عن النحاس بن قہم ولا نعرف الا من حدیث۔ اور آخری حدیث حضرت ابو سعید خدری کی ہے، وہ فرماتے ہیں کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی الضحیٰ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام چاشت پڑھا کرتے تھے، حتیٰ نقول، یہاں تک کہ ہم کہتے ہیں لا یدو، چھوڑیں گے نہیں، ویدوا، اور پھر چھوڑ جاتے، حتیٰ نقول، یہاں تک کہ ہم کہتے ہیں لا یصلی، پڑھیں گے نہیں۔ دیکھو سوائے تہجد کے باقی جو نوافل ہوتے تھے، یہ سنن مؤکدہ بھی نہیں، جو عام نوافل، جو دوسرے نوافل وغیرہ ہوتے تھے یا نفل روزے ہوتے تھے، اس میں آپ علیہ صلاۃ والسلام کا عمل بڑا عجیب و غریب ہوتا تھا، کبھی مسلسل کرتے تھے، کبھی کبھی مسلسل چھوڑ دیتے تھے۔ تو
उसमें शायद हिकमत ये हो ताकि उम्मत इसको वाजिब ना समझे, ज़रूरी ना समझे। ज़ाहिर है, पहले ही इबादत का बड़ा एक आप अलैहिस्सलाम के मामूलात थे पक्के, तो उन पक्के मामूलात से हटकर जो होते थे उसमें इस तरह से करते थे। दूसरा, उसमें वही वाली बात कि जब इस तरह से मामूल डिस्टर्ब कर दिया जाता है तो फिर उसको दोबारा करना भी बड़ा मुश्किल होता है, छोड़ना भी बसा औकात मुश्किल होता है। तो इस तरह से कसदन भी शायद इसको डिस्टर्ब कर लिया जाता था कि कभी पढ़ा करते थे, फिर छोड़ देते थे, फिर दोबारा शुरू कर लेते थे। क़ाल अबू ईसा हाज़ा हदीसुन हसनुन गरीबुन। जी आगे। باب ما جاء في الصلاة عند الزوال. जी जी एक्सक्यूज मी पूछिए। सर, जी वो जो हजरत उम्मे हनी के घर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी, मुख्तसर पढ़ी, तो उसका ये मतलब है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिलावत जो है वो मुख्तसर की होगी, छोटी सूरतें पढ़ी होंगी, क्योंकि रुकूस जो तो पूरे किए ना, वरना आपका मामूल हाँ था ना कि आप तिलावत भी करते थे, किरात लंबी करते थे। बिल्कुल। तिलावत तो मुख्तसर की है, रुकू और सजदे भी मुख्तसर की है। यानी मुख्तसर करने का मतलब है आप तो रुकू और सजदे में भी दुआएं मांगते थे और उसको लंबा कर लेते थे ना, तो उसको भी आम जी मामूल से मुख्तसर किया। तो आम मामूल से मुख्तसर करने का मतलब आप यूँ समझ लें कि 5 दफ़ा मसलन उसमें सुबहान रब्बियल आला का होगा, या 7 दफ़ा। और आप अगर आहिस्ता भी बहुत ही तरतील के साथ भी पढ़ते होंगे तो वो रुकू या वो सजदा आपके आम मामूल से बहुत मुख्तसर था। तो हमारे लिए तो ठीक शायद वो भी बहुत लंबा हो, लेकिन वह आपके आम मामूल से वो भी मुख्तसर था। जी। जी। وبه قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن مسلم بن أبي والداهن هو أبو سعيد المؤدب عن عبد الكريم الجزري عن مجاهد عن عبد الله بن صائب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا بعد أن تزول الشمس قبل الظهر، وقال إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء وأحب أن يسعد لي فيها أمل صالح. وفي باب عن علي وأبي أيوب قال أبو عيسى حديث عبد الله بن صائب حديث حسن غريب. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي 4 ركعات بعد الزوال لا يسلم إلا في آخرهن. काबश माशाल्लाह। ये बाब है, बाबू माजा फिर सलात इंद जवाल, जवाल शम्स के वक्त नमाज पढ़ना। जवाल का मतलब होता है जब सूरज हरकत करते करते बिल्कुल आसमान के दरमियान में खड़ा हो जाए, 5 या 7 8 मिनट थोड़ा सा ठहरा हुआ महसूस होता है, फिर दोबारा हरकत करने लगता है मगरिब की तरफ। तो वो मगरिब की तरफ जब आप हरकत शुरू हो जाती है, जिसको हम कहते हैं जोर का टाइम दाखिल हो गया, तो जवाल का टाइम उसको कहते हैं। वो हमारे उर्फ में जवाल उसको कहते हैं जब वो आसमान में खड़ा हो। तो लेकिन यहाँ जवाल से मुराद है जब सूरज वो आसमान के उस वक्फे से मगरिब की तरफ जाना शुरू हो जाए, यानी जब जोर का वक्त दाखिल हो जाए। तो अब्दुल्ला बिन साहिब कहते हैं कि नबी अलैहि सलाम 4 रकात पढ़ा पढ़ा करते थे, कबल अन तज़ूल शम्स, बाद अन तज़ूल शम्स, सूरज के जवाल के बाद, जोर से पहले पहले। तो आपने फरमाया ये ऐसी घड़ी है तुफ तौफी अबवाब समा, जिसमें आसमान के दरवाजे खोले जाते हैं। वही और मैं चाहता हूँ ये सद अली फी अमल सालेह, कि उसमें मेरा भी कोई नेक अमल ऊपर जो है ना वो चला जाए। वो फिलबाब या ना अली व अबी अयूब। देखो बाकी अइमा के यहाँ ये इसको नफले जवाल कहते हैं। ये 4 नफल है, नबी अलैहिस्सलाम जवाल के टाइम पढ़ा करते थे। तो ये सुन्नतों के अलावा की नमाज है। लेकिन अहनाफ के यहाँ ये दरअसल जोर की 4 सुन्नतें हैं, इसे आप जवाल के टाइम पढ़ा करते थे। लेकिन हमारे अहनाफ में से गालिबा हज़रत गंगोई रहमुल्लाह से बाज़ लोगों ने नकल किया है कि उनके यहाँ वो भी इसको अलग समझते थे। और वो इसको यूँ देखते थे कि देखो अगर ये जोर के 4 रकत होते हैं तो आप सलाम फिर जोर के फ़र्ज के साथ उसे पढ़ते ना। ज़ाहिर है जोर का फ़र्ज तो मुख्तलिफ अवकात में होता था, सर्दियों में जल्दी और गर्मियों में लेट। तो ये कैसे हो सकता है कि आप सर्दी हो या गर्मी, जवाल के फौरन बाद ही 4 रकतें पढ़ते होंगे। तो ये गोया कि वो जोर की 4 सुन्नतें नहीं है, बल्कि ये शायद अलग नमाज है। काला अबू ईसा हदीस अब्दुल्लाह इब्न साहिब हदीस हसन गरीबुन। और नबी अलैहि सलाम से ये भी मरवी है कि आप पढ़ा करते थे बाद 4 रकात, इन 4 रकात जवाल के बाद, ला युसल्लिमु सलाम नहीं फेरते थे मगर उनके आखिर में। जी आगे। باب ما جاء في صلاة الحاجة. وبه قال حدثنا علي بن عيسى عيسى بن يزيد البغدادي قال حدثنا عبد الله بن بكر
وأزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. قال أبو عيسى هذا حديث غريب وفي أسناده مقال فايد بن عبد الرحمن يضعف في الحديث وفايد هو أبو الورقة. शाबाश माशाल्लाह। ये बाबू माजा फी सलातिल हाजा, सलातुल हाजा के बारे में। सलातुल हाजा का मतलब है जब इंसान को कोई फौरी ज़रूरत पेश आए, कोई मसला दरपेश हो, तो उस वक्त उस मसले के हल के लिए नमाज पढ़ना, जिसको सलातुल हाजा तबलीग वाले हजरात भी कहते हैं, बुजुर्ग भी कहते हैं, तो वो वही सलातुल हाजा है। तो अब्दुल्ला बिन अबी औफा कहते हैं कि नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, मन कानत लहु इलल्लाहि हाजतुन, जिसकी अल्लाह के सामने कोई ज़रूरत हो, और इला अहदिम मिन बनी आदम, या किसी इंसान से मतलब कोई ज़रूरत हो, किसी इंसान से कुछ मांगना हो, या कोई उससे कोई बात कहनी हो, या उसको किसी बात पे कायल करना हो, फलियतवज़्ज़ा, तो वो वज़ू करे, वलियुहसिनुल वज़ू, और अच्छा वज़ू करे, सुम्मा युसल्ली रकातैन, फिर दो रकतें पढ़े, सुम्मा लियुस्नी अलल्लाह, फिर अल्लाह पर दुरूद पढ़े, वलियुसल्ली अलन नबी, और नबी अलैहिस्सलाम पर भी दुरूद पढ़े, यानी आखिर में, सुम्मा लियकुल, फिर यूं कहे, ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम, सुबहानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्अलुका मूजिबाति रहमतिक, या अल्लाह मैं आपकी रहमत को वाजिब करने वाली चीज़ें मांगता हूँ, व अज़ाइम मग़फ़िरतिक, और आपकी मग़फ़िरत के जो पक्की चीज़ें हैं, यानी कि आप पुख्ता तौर पर मेरी मग़फ़िरत करें, वल गनीमत मिन कुल्लि बिर्रिन, और हर नेकी का फ़ायदा, व सलामत मिन कुल्लि इस्म, और हर गुनाह से सलामती। फिर फरमाया, ला तदा अली ज़म्बन इल्ला गफ़रता, मेरा कोई ऐसा गुनाह मत छोड़े जिसे आपने माफ़ कर दिया हो, वला हमन इल्ला फ़र्रजता, न कोई ऐसा गम जिसे आपने ख़त्म कर दिया हो, वला हाजतन हिय लका रिज़न इल्ला क़ज़ैता, न कोई ऐसी ज़रूरत जो आपकी रजामंदी का बायस हो मगर आप उसे पूरी कर दें, या अरहमर राहिमीन। वैसे भी बड़ी जामे दुआएं, अपनी दुआओं में उसे भी कह के क्या करना चाहिए, शामिल करना चाहिए। तो अब जी, काला अबू इसे इमाम तिरमिज़ी फरमाते हैं, हाज़ा हदीसुन गरीबुन फी इस्नादी मकालुन, कि इसकी सनद में कुछ है। फ़ाइद बिन अब्दुर्रहमान युज़ाफ़ु फ़िल हदीस, उनको हदीस में ज़ईफ़ करार दिया जाता है, और फ़ाइद उसका नाम है अबुल वर्क़ा। तो देखो, सलातुल हाजा सालिहीन के यहाँ बड़ा एक मामूल नमाज है, तो ज़ाहिर है हमें भी अपने उसका बनाना चाहिए। और ज़ाहिर है जब इंसान को कोई ज़रूरत पेश आती है तो हम उसी बंदे के पास जाते हैं जो हमारी ज़रूरत पूरी कर सकते हैं ना। तो अल्लाह सारी ज़रूरियात पूरी कर सकते हैं। तो इसका एक गोया के मामूल बना लेना चाहिए, जब कोई ऐसे हादिसा पेश आए, कोई ऐसे सानिया या कोई बहुत ही अहम ज़रूरत हो, तो उस पर भी अमल कर लेना चाहिए। जी आगे। باب ما جاء في صلاة الاستخارة وبه قال حدثنا قتيبة ये قال एक बाब और حدثنا पढ़ते عبد हैं, الرحمن परेशान नहीं होना। जी। عن أبي الموال عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعيشتي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري وآجله فيسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر أمر شر لي في ديني ومعيشتي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به قال وليسمي حاجته. وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وأبي أيوب قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن أبي الموال وهو شيخ مدني ثقة روى عنه سفيان
حديثا وقد روى عن عبد الرحمن غير واحد من الأئمة. शाबाश माशाल्लाह। ये बाब है, बाब माजा फी सलातिल इस्तिखारा। तो जाबिर बिन अब्दुल्ला कहते हैं कि नबी अलैहि सलातो सलाम हमें इस्तिखारा सिखाया करते थे तमाम कामों में, जैसे हमें कुरान की कोई सूरत सिखाते थे। आप अंदाज़ा लगा कितनी अहम, जैसे कुरान की सूरत बड़ी ताकीद के साथ या बड़े एहतिमाम के साथ सुनाते थे, सिखाते थे, तो इस्तिखारा भी इसी तरह। और फिर क्या फरमाते थे कि इज़ा अम्मा अहदुकुम बिल अम्र, जब तुम में से किसी काम का इरादा करे, फलियर का रकातैन, तो दो रकतें पढ़े, मिन गैरिल फरीज़ा, यानी जो फ़र्ज़ ना हो, नफल। सुम्मा लियकुल, फिर ये पढ़े, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तखीरुका बिइल्मिक, बड़ी जामे दुआ है कि अल्लाह मैं आपके इल्म की बुनियाद पर आपसे खैर मांगता हूँ। व अस्तक़दिरुका बिक़ुदरतिक, और आपकी कुदरत के सदके आपसे कुदरत मांगता हूँ। व असअलुका मिन फ़ज़लिकल अज़ीम, और आपका बड़ा फजल मांगता हूँ। फ़इन्नका तक़दिरु वला अक़दिर, क्योंकि आप कादिर है, मैं कादिर नहीं हूँ। व तालमु वला आलम, आप जानते हैं, मैं नहीं जानता। व अंत अल्लामुल ग़ुयूब, फिर फरमाया अल्लाहुम्मा इन कुन्ता तालम, कि अल्लाह अगर आप जानते हैं, अन्ना हाज़ल अम्र खैरुल ली, कि ये मामला मेरे लिए बेहतर है, फ़ी दीनी, मेरे दीन में, और फिर फरमाया व माईशती, और मेरी ज़िंदगी में, व आक़िबती अमरी, और मेरे बाकी मामलात में। तो फरमाया अवकाल, या आपने फरमाया फ़ी आजिली ही व आजिली, यानी आप फ़ी आजिली व आजिली का मतलब है कि मेरे मौजूदा में भी, व आजिली, और फ्यूचर में भी, मुस्तकबिल में भी। फयस्सिर होली, तो मेरे लिए उसे आसान कर। सुम्मा बारिक ली फी, फिर उसमें मेरे लिए बरकत भी डाल दे। और फिर आगे फरमाया व इन कुंत तालम, और अगर आप जानते हैं, अन्ना हाजल अम्र, कि ये मामला शर्रुन ली, मेरे लिए उसमें शर है, फी दीनी, दीन के मामले में, व मईशती, मेरी ज़िंदगी, वाक़िबत अमरी, और मेरे अंजाम के बारे में। या आपने यूँ फरमाया फ़ी आजिली अमरी व आजिली, मौजूदा हालत में भी और मुस्तकबिल में भी। फसरिफ अन्नी, तो इसको मुझसे फेर दे। वसरिफनी आनो, मुझे भी उससे फेर दे, उसे मुझसे फेर दे और मुझे उससे फेर दे। वक़दुर लियल खैर, फिर मेरे लिए खैर मुक़द्दर फरमा, हाई सुकान, जहाँ भी हो। सुमर जिनी भी, सुबहान, फिर उस पर मुझे राज़ी भी फरमा, यानी कि उसमें मुझे फिर पसंद भी आ जाए कि वाकई मेरे लिए मामला यही था असल में। काला, फरमाते वो यूसमी हाजत हो, आप इस मौके पर अपनी हाजत का नाम भी लेते थे, इन कान हाजल अम्र में। लेकिन ज़ाहिर है, अगर किसी आदमी को कोई नाम नहीं ले सकता, तो हाजल अम्र पर उस हाजत का तसव्वुर करे, जिस काम के लिए वो कर रहा है, तो उसका तसव्वुर करे। वो फिलबाब अन अब्दुल्लाह इब्न मसूद व अबी अय्यूब क़ाल अबू ईसा हदीस जाबिर हदीस हसन सही गरीब। और हमें मालूम नहीं मगर अब्दुर्रहमान बिन अबिल मवाली के हदीस से, और वो शेख मदीनी सिका है, उनसे सुफियान ने हदीस रिवायत की है, और अब्दुर्रहमान से बहुत सारे आयमा ने क्या की है, रिवायतें जो है ना वो ली है। देखो, इस्तिखारा का माना आपको समझ आ गया कि मतलब है खैर तलब करना। तो बस इसको एक दो बातें इस्तिखारा के हवाले से समझे। एक तो ये बात कि इस्तिखारा उमूर मुबाह में होता है, वाजिब और फ़र्ज उमूर में नहीं होता। जैसे कोई आदमी इस्तिखारा करे कि मैं नमाज पढ़ूँ या ना पढ़ूँ। और गुनाह के कामों में भी इस्तिखारा नहीं होता, कि कोई आदमी किसी जगह गुनाह करना चाहता है, फिर पहले इस्तिखारा कर रहा है कि ये गुनाह करूँ या ना करूँ। तो गुनाह में और फ़र्ज और वाजिब में नहीं होता, बल्कि मुबाह कामों में क्या होता है, इस्तिखारा जो है ना गोया कि वो होता है। और इस्तिखारा क्या है? देखो, इस्तिखारा दरअसल अल्लाह अल्लाह से रहनुमाई है। देखो, हमें जब कोई काम करना होता है, तो हम एक तजर्बाकार आदमी से रहनुमाई लेते हैं ना, कि आप ज़रा मेरे बारे में मुझे बता दें, मुझे ये काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए। हमें बहुत सारे मामलात में नहीं पता होता, तो अल्लाह को तो हर चीज़ के मामले का पता है ना। तो ये दरअसल अल्लाह ताला से डायरेक्ट क्या करना है, कि यानी डायरेक्ट ये जो है ना गोया कि वो खैर तलब करना है। तो इसलिए गोया कि इसमें ये इस्तिखारा है। और जाहिर है, जब आम बंदा भी किसी से कोई मशवरा करता है, तो वो मशवरा दे देता है, तो फिर अल्लाह कैसे गोया कि वो मशवरा नहीं देगा। तो गोया कि उसमें ही है। और हज़रत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह से बाज़ ने यह नकल किया है कि एक तो इस्तिखारा इसलिए भी मशरू किया गया है कि ज़माना जाहिलियत वाले ऐसे मौके पर फाल निकालते थे, तीर निकाल लेते थे, उस पे लिखा होता था हाँ नहीं, करना है नहीं करना, इस तरह के अल्फाज अजीब गरीब लिखे होते थे, या उसके रंग होते थे। तो फिर जो तीर निकल आता था वो कर लेते थे, या जो न करने का होता था तो नहीं करते थे। तो ये उसके बदल में हमें इस्तिखारा अता किया गया है। और दूसरा, इस्तिखारे में ये होता है कि फिर इंसान मुतमईन बहुत हो जाता है। ज़ाहिर है, जब इंसान एक
माहिर आदमी से मशवरा करे तो मुतमईन हो जाते हैं ना। तो इस्तिखारे में मुतमईन भी बहुत हो जाते हैं। और आपने भी इसका यकीनन तजुर्बा किया होगा, इस्तिखारे के बाद हो ही नहीं सकता कि बेखैरी वाली चीज़ आ जाए। शुरू में हो सकता है बेखैरी हो या ऐसा लगता हो कि ये ठीक नहीं है, लेकिन जब बंदा अंजाम में उसको देखता है तो उसे बिल्कुल परफेक्ट लगता है। तो इसलिए इस्तिखारा अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाए, ज़रूर किया करे। इवन कोई चीज़ खरीदनी है, कोई चीज़ बेचनी है, किसी जगह रिश्ता करना है, किसी इदारे में दाखिला लेना है, जो भी है मामलात हैं, ये इस्तिखारा करना चाहिए। और अगर इतना बड़ा टाइम ना हो तो उसके लिए वो मुख्तसर इस्तिखारा है, अल्लाह मखिर ली वख्तर ली। जैसे बाजार में गए, अब किस दुकान से चीज़ें खरीदूं, तो फ़ौरन अल्लाह मखिर ली वख्तर ली, अल्लाह मखिर ली वख्तर ली। तो इसको पढ़ा करें तो बहुत ही बेहतरीन किस्म की उसमें खैर निकल आएगी। हाँ, इस्तिखारे में ये है कि इस्तिखारा खुद करना होता है, कुछ लोग दूसरों से करवाते हैं। तो ज़ाहिर है दूसरों का हमारे उसमें क्या है, वो उसे हमारी ज़रूरत का क्या पता कि वो कितना ज़रूरी है हमारे लिए। उसे हमारे उस फीलिंग हम उसको नहीं बता सकते ना। तो लिहाजा इस्तिखारा खुद ही करना होता है। और इस्तिखारे में ये भी ज़रूरी नहीं कि ख्वाब देखे, बस दिल जो है ना वो किसी तरफ माइल हो जाता है। या फिर अगर दिल माइल नहीं हो भी होता तो असबाब ऐसे मुहैया हो जाते हैं कि जिससे बंदा किसी किसी किनारे लग जाता है। वो जो कन्फ्यूज़न होती है ना, उससे बंदा निकल आता है। तो इस्तिखारा दरअसल उस कन्फ्यूजन का हल है। लेकिन अगर पहले से ही मामला साफ है, फिर अगर ना भी करे तो खैर है, लेकिन बहरहाल इस्तिखारा कर लेना चाहिए। अल्लाह मखिर ली वख्तर ली तो बिल्कुल अपना मामूल बनाए कि जब बाजार में जाए तो अल्लाह मखिर ली वख्तर ली, और कोई भी काम हो तो एक एक ताल्लुक बिल्ट होता है ना अल्लाह के साथ। कि जब बंदा अल्लाह से मशवरा करता है, कोई बंदा हमसे मशवरा करता है, तो हमें लगता है कि यार ये हमें अपना खैर खा समझता है ना। तो हमें थोड़ा सा अपनायत महसूस होती है। तो जब हम अल्लाह से मशवरा करते हैं तो अल्लाह को भी फिर एक ख़ास एक ताल्लुक बिल्ट होता है, जो आम फ़राइज़ के अलावा भी एक ख़ास किस्म का ताल्लुक होता है। और इंसान वाकई बहुत मुतमईन होता है। इन्हें मैं अपना बताऊं कि मैंने जिस जिस मामले में इस्तिखारा किया है, उसके बाद मुझे कभी उस पर पछतावा नहीं हुआ, कभी। चाहे वो जो भी हो, उस वक्त तो शायद मुझे उस वक्त नहीं उससे लगा, लेकिन जब अब जाकर देखता हूँ तो मुझे लगता है कितना बेहतरीन ये निज़ाम पलटा और कितना बेहतरीन हुआ। अगर मैं उस मौके पर दूसरी तरफ चला जाता तो शायद इस तरह से ना होता। तो इसलिए इस्तिखारा जो है ना यकीन के साथ करे तो बहुत फवायद है इस्तिखारे के। जी, इतना काफ़ी आज। जी सर ठीक है। तो सर सजदा शुक्र का तरीका बता दें। सजदा शुक्र पर पता नहीं है आगे बाप बांधेंगे भी या नहीं बांधेंगे। तो शायद बाप बांध लेंगे, सजदा शुक्र का जिक्र आता भी है। तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के शुक्र शुक्र नहीं इसके तो करना सारी चाहिए, तीन नहीं है। बाब रह गए। आ रहा है आगे, आगे आ रहा है। चलो मेरे जी। ख्याल में सारी ये जिल्द मुकम्मल हो जाती है और दो अहादीस के बाद। नहीं, जिल्द मुकम्मल नहीं होगी, ये जिल्द बहुत लंबी है। वो आगे फिर बाबुल जुमा है, फिर बहुत सारे हैं। जिल्द इसकी जो पहली जिल्द है वो दरअसल मुकम्मल होगी किताबुल अतीमा पर जाकर। तो देखो, सजदा शुक्र में ये है कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह क्या नहीं करना चाहिए। क्यों? वो फरमाते हैं कि अल्लाह की नेमतें इतनी ज्यादा है, किस किस नेमत पर शुक्र करें। तो लेकिन बाकी अइमा के यहाँ नियामतें तो हर, सेहत भी अल्लाह की नियामत है, हर हम सांस ले रहे ये भी अल्लाह की नियामत है। लेकिन एक नियामत बहुत ही स्पेशल होती है ना। तो लिहाजा अगर ऐसी स्पेशल नियामत मिले एक आदमी को और फौरन खुशखबरी मिले, तो गोया कि अल्लाह को थैंक कहना या शुक्र करना सजदे की सूरत में अदा किया जाए। तो बाज़ रिवायत में इसका सबूत है। तो इसलिए फिर सजदा यही है कि बस अल्लाह अकबर कहकर सजदा किया जाए और उठ जाए, अल्लाह अकबर कहकर उठ जाए, जैसे वो सजदा तिलावत होता है, तो इस तरह से करे फिर। वो अक्सर हमारे प्लेयर्स जो है वो जब सेंचुरी मुकम्मल होती है तो वो ग्राउंड में सिजदा कर लेते हैं। हाँ, बिल्कुल करना चाहिए, अच्छा है। ये ज़ाहिर है एक खुसूसी नियामत पर। तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह दरअसल उस जाविये को देखते हैं कि अगर सजदा शुक्र करना है तो फिर तो आदमी कभी सजदे से सर ही ना उठाए। भाई, हम तो अल्लाह की नियामतों में पाँव से लेकर सर तक घिरे हुए हैं, तो किस किस नियामत पर सजदा शुक्र अदा करें। लेकिन वो बाकी दूसरे जाविये से देखते हैं कि नहीं, कुछ नियामतें बहुत ही ख़ास होती हैं ना, तो उन ख़ास नियामतों पर फिर सजदा शुक्र अदा कर लें। जज़ाकल्लाह सर। चलो जी, इतना काफ़ी आज, फिर इंशाल्लाह बाकी इंशाल्लाह कल पढ़ते हैं। जी उस्ताद जी। जी जी उस्ताद। इंशाल्लाह उस्ताद। चले जी, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।